Good morning, students. How are you? Yeah, okay. I think you are very fine. Okay. As you all know that winter vacation is you are getting for 4 or 5 days. I think that you have got your vacation, but I will just say to you all that don't sit idle at your home. Just you study also, because just after 1 or 2 months you have to appear for your final examination. So don't sit idle. Again, I am repeating you that don't sit idle. Just study also at your home and focus on your study and try to perform more for your final paper. Whatever your final paper is going on, means whatever your final examination is going on, just after 1 or 1.5 months, you just do yourself ready for that. So today I am going to explain you an essay, and the topic is save nature. So all of you, please pay attention here. Nature is a beautiful gift given to us by Mother Earth. The trees, plants, animals, birds, and everything around us make this world so unique and colorful. I just want to tell you, see the first line, from first line, nature is a beautiful gift given to us by Mother Earth. As you all know that we are living on the planet, its name is Earth. So this planet is just working as our mother. The planet on which we are living, we are residing, this is just like our mother. So from mother's side only we are getting a very good, very beautiful gift, and that is nature. The trees, plants, animals, birds, and everything around us make this world so unique and colorful. In this nature, whatever we are getting from the nature, means in this nature we are getting trees, plants, animals, birds, and everything, means many other things are also there around us. All those things make this world so unique and colorful. But for years now, human has been causing trouble to nature, and it's our duty to save it in whichever way we can. Now here, I just want to explain you in Hindi also. But for years now, human has been causing trouble to nature. कुछ सालों से ऐसा भी हो रहा है कि मनुष्य जो है, जो ह्यूमन बींग्स रह रहे हैं इस पृथ्वी पे, इस ग्रह पे, वो लोग इस प्रकृति में ट्रबल, मुश्किलें, बहुत सारी बाधाएं इस नेचर में दे रहे हैं. वो क्या है? एंड इट इज आवर ड्यूटी. बाधाएं दे रहे हैं, दिक्कतें दे रहे हैं, परेशानियां दे रहे हैं इस नेचर को, इसलिए ये हमारा कर्तव्य बनता है, ये हमारा ड्यूटी बनता है कि हम उस नेचर को सेव करें. आवर ड्यूटी टू सेव इट इन विच एवर वे वी कैन. जैसा भी हो सके, जितना हमसे ज़्यादा हो सके, जैसा भी तरीका हम यूज करें, उस तरीका से हम उसको सेव करें. ये हमारा कर्तव्य बनता है, ये हमारा ड्यूटी है. फर्स्टली, ट्रीज आर आवर बेस्ट फ्रेंड. एज यू ऑल नो that we are living in this nature, so we can say that trees are our very good friend. Whatever the trees are there, from these trees what we are getting? We are getting oxygen. Without this we can't survive. You can say that if trees will not be present in our environment, in our society, on our earth, then we can't survive in a proper way. अगर हमारे प्लानेट पे ट्रीज नहीं होगा तो हम सही से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हम सही से रह नहीं पाएंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं. व्हाट एवर द ऑक्सीजन वी आर इनहेलिंग, दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम ट्रीज. सो इट्स वेरी कंपल्सरी दैट वी शुड प्रोटेक्ट ट्रीज ऑल्सो. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम ट्रीज को प्रोटेक्ट करें. नाउ नेक्स्ट, फर्स्टली, ट्रीज आर आवर बेस्ट फ्रेंड. हम जानते हैं कि ट्रीज जो है हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त है, बहुत ही अच्छा मित्र है, और इसी कारण से हमें उसको बचा करके रखना है, जो हम फ्यूचर में हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है. ये इसको बचा के चलें ताकि आगे जो कमिंग जनरेशन है उनके लिए भी ये लाभकारी साबित हो. तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारे आसपास जितने भी माहौल में ट्रीज हैं, हमारे सोसाइटी में जितने भी ट्रीज हैं, उनको हम बचा कर रखें. सोसाइटी से, सोसाइटी के लोग इसको किसी तरह से कटाई ना करें या हार्म ना करें. आगे देखिए, फर्स्टली, ट्रीज आर आवर बेस्ट फ्रेंड. हम जानते हैं कि ट्रीज हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त है.
They give us clean air to breathe and provide shelter. They give us clean air to breathe and provide shelter to animals. ये जो पेड़ पौधे हैं ये क्या है, हमें शुद्ध हवा देते हैं सांस लेने के लिए और जानवरों को रहने के लिए आश्रय देते हैं। वो जानवर उसमें उसके नीचे रह सकें, पक्षी लोग पेड़ पर रह सकें और भी जानवर वगैरह पेड़ पौधे की छांव में रह सकें, इसलिए ये उसके लिए भी जरूरी है। बट पीपल कट डाउन ट्रीज फॉर कमर्शियल पर्पस। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि कमर्शियल पर्पस के कारण ट्रीज को काट देते हैं, ये नहीं करना चाहिए हमें। वी मस्ट स्टॉप डिफॉरेस्टेशन एंड प्लांट मोर ट्रीज टू मेक आवर एनवायरनमेंट फ्रेश एंड हेल्दी। दैट्स वाई वी मस्ट स्टॉप डिफॉरेस्टेशन। हमें डिफॉरेस्टेशन को रोकना चाहिए। पेड़ों की कटाई जो हो रही है, पेड़ को जो हम नुकसान कर रहे हैं, ये हमें रोकना चाहिए। एंड प्लांट मोर ट्रीज टू मेक आवर एनवायरनमेंट फ्रेश एंड हेल्दी। और इन्वायरमेंट को फ्रेश और हेल्दी बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्लांटिंग। वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ को लगाना चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है। नाउ नेक्स्ट, सेकेंडली वी शुड टेक केयर ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। और उसके साथ साथ प्लांट्स को तो हमें लगाना ही चाहिए। नेक्स्ट क्या है, उसके साथ साथ सेकेंडली वी शुड टेक केयर ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑल्सो। हमारे जो सोसाइटी में एनिमल्स हैं, जो बर्ड्स हैं, उनका भी ख्याल हमें रखना चाहिए। क्योंकि सोसाइटी में अगर हम रह रहे हैं तो सबसे बड़ा कर्तव्य हमारा बनता है कि हम उन जानवरों का भी ख्याल रखें जो हमारे आसपास के समाज में, सोसाइटी में रह रहे हैं। और पेड़ पौधों का भी ख्याल रखें, पेड़ों की कटाई को रोकें, वन कटाव को हमें रोकना चाहिए। इस पर हम बढ़ावा दें कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ को हम लगाएं। नाउ नेक्स्ट, ये करने से क्या होगा, वी मस्ट स्टॉप डिफॉरेस्टेशन एंड प्लांट मोर ट्रीज टू मेक आवर एनवायरनमेंट फ्रेश एंड हेल्दी। इससे क्या होगा, अगर हम डिफॉरेस्टेशन को रोकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ को लगाएंगे तो ये इससे क्या होगा, हमारा एनवायरनमेंट जो होगा वो फ्रेश और हेल्दी बना रहेगा। सेकेंडली वी शुड टेक केयर ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। मैंने बताया कि हमें जानवरों का टेक केयर करना चाहिए, बर्ड्स का टेक केयर करना चाहिए। दे आर ऑल्सो ए पार्ट ऑफ नेचर, बिकॉज दे आर ऑल्सो ए पार्ट ऑफ नेचर एंड डिजर्व लव एंड रिस्पेक्ट। वो हमारे नेचर का कह रहा है कि वो हमारे नेचर का, हमारे प्रकृति का वो भाग हैं और वो भी प्यार के काबिल हैं। हमें उनको भी प्यार देना चाहिए, बिकॉज दे ऑल्सो डिजर्व लव एंड रिस्पेक्ट। जानवरों को, पेड़ पौधों को हम ध्यान देंगे ताकि हमारा सोसाइटी क्लीन रहे, हमें स्वच्छ वातावरण मिलता रहे, हमें ऑक्सीजन सप्लाई सही से मिलता रहे, ये सब हमें ध्यान देना है। वी शुड नॉट हार्म देम और डिस्ट्रॉय देयर हैबिटेट्स। वी शुड नॉट हार्म ट्रीज, वी शुड नॉट हार्म एनिमल्स ऑल्सो और डिस्ट्रॉय देयर हैबिटेट्स। वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय द हैबिटेट्स ऑल्सो। पीपल शुड नॉट ऑल्सो हंट देम। जो भी जानवर हैं, जंगल में जो जानवर रहते हैं और भी आसपास में जो जीव जंतु रह रहे हैं, उनका जो नुकसान हम करते हैं, जो शिकारी लोग उनका शिकार करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट हार्म देम, वी शुड नॉट हंट ऑल्सो। पीपल शुड नॉट हंट देम, उनका शिकार नहीं करना चाहिए। इंस्टेड वी कैन क्रिएट सेफ स्पेसेज फॉर देम टू लिव पीसफुली। और उसके बजाय हमें क्या करना चाहिए, उनके लिए, उन सभी जानवरों के लिए वी कैन क्रिएट सेफ स्पेसेज फॉर देम टू लिव पीसफुली। वो लोग शांतिपूर्वक रह सकें, ऐसा हमें माहौल को बनाना चाहिए। वैसा उनके लिए वी कैन क्रिएट सेफ स्पेस, हम उनके लिए ऐसा जगह को बना कर रखें, ऐसा जानवरों से मेल जोल बना कर रखें ताकि किसी तरह का नुकसान उनको ना हो और शांति में वो लोग सही से रह सकें। वी मस्ट कीप आवर रिवर्स एंड लेक्स क्लीन टू। और साथ साथ हमें आसपास में, मीन्स सराउंडिंग अस मेनी रिवर्स आर देयर, मेनी ponds are there, so we should take care of those rivers also, those ponds also, and we should not throw the waste or garbage in those ponds and rivers. This is our responsibility to take care of all those. Now next, we should not throw trash in them and use water wisely. We should not throw the trash in those ponds and rivers, and as well we should use water wisely. As because we all know that water is also very important for us, so we should use water also in a wise manner. Now, nature is not the responsibility of just an individual but everyone. नेचर को टेक केयर करना सिर्फ एक इंडिविजुअल का, किसी एक का बात नहीं है। उसके साथ साथ समाज में जितने लोग रह रहे हैं सभी ग्रुप बनाकर रहें और सभी लोगों का यह कर्तव्य बनता है कि नेचर का टेक केयर करें, उसको बचा कर रखें और उसको सुरक्षित रूप में बरकरार रखें।
सो नेचर इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जस्ट एन इंडिविजुअल, सिर्फ एक इंडिविजुअल का काम नहीं है कि उसको बचा के रखे, बल्कि बट एवरीवन, बाकी लोगों को भी ध्यान देना चाहिए कि नेचर को सही से बचा के रखें, उसको सुरक्षित रखें. If we all work together, we can make a difference. Let's protect our beautiful planet for ourselves and future generation. If we all work together, अगर हम लोग एक साथ मिलके काम करें तो क्या होगा? We can make a difference. तब हम लोग बदलाव ला सकते हैं. Let's protect our beautiful planet for ourselves and future generation. That's why again I am telling you that as a resident of this planet Earth, it's very much important that we are the very much responsible to protect the environment, protect the nature. So in the last line again I am going to repeat your last line, that let's protect our beautiful planet for ourselves and future generation. The planet on which we are residing, it's very much important for us to please take care of those planet, and let's protect our beautiful planet. So we should protect the planet for ourselves and for future generation also. We should protect the planet for ourselves and as well as for future generation, because in future whoever will come to reside in this planet, they can feel safe and they can just feel very peaceful way or manner to live here and reside here. This is the main qualities of a human beings, to please take care of the society, take care of the nature. If you are taking care of the nature, then for the future generation also it will be helpful for the next coming generation people. So this was only the lesson which I have explained you today, and the topic was save nature. यहाँ मैं बच्चों ये कहना चाहूँगा कि प्रकृति जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट ही हमारे लिए है. हम इस प्रकृति को ठीक ढंग से बचा के रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे, उसका हम देखभाल करेंगे, तो हमारे सोसाइटी में जो लोग हैं वो अच्छे तरीके से रह सकते हैं, हमें ऑक्सीजन सप्लाई सही से मिल सकता है, और फिर फ्यूचर जनरेशन में जो आने वाले जो पीढ़ी हैं उन लोगों को भी हम अगर इन्वायरमेंट को बचा के रखें तो वो भी सही तरीक़ा से रह सकेंगे और इस प्लानेट का आनंद ले सकेंगे. यही था आपका क्लास. आज का जो टॉपिक था आपका सेव नेचर. सो बच्चों मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोगों से कि छुट्टी में आप ये काम करें कि घर पर सिर्फ आपको नॉर्मली बैठना नहीं, साथ साथ आपको पढ़ाई भी करना है. विंटर ब्रेक है, ब्रेक का भी थोड़ा सा आनंद लीजिए और साथ साथ पढ़ाई भी कीजिए, क्योंकि कुछ दिनों बाद आपको फाइनल एग्जाम के लिए आपको फेस करना होगा. दैट्स वाई इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट यू जस्ट टेक केयर ऑफ योर स्टडी ऑल्सो. इफ यू वांट टू परफॉर्म बेटर देन प्लीज at first keep yourself fit and healthy and try to read in a proper way and try to perform better for your future and as well for your next session also. So thank you all of you and have a nice day. Thank you.